کمرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور سنجیدگی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی خاندانی تصاویر، فرش پر بچھا ہوا قیمتی قالین اور کونے میں رکھے بڑے سے صوفے پر بیٹھے رحیم صاحب اپنی مخصوص وزاداری کے ساتھ حقے کے لمبے کش لے رہے تھے۔ کمرے میں حقے کی مہک رچی بسی تھی اور ماحول میں ایک گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر آہستہ سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جنت ہلکے ہلکے کپ کپاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی، سر پر دوپٹہ، نظریں جھکائی ہوئی، لبوں پر دبی دبی سی بے چینی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہو۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی صوفے کے قریب پہنچی اور نرمی سے بولی، السلام علیکم داجی۔ رحیم صاحب نے حقے کی نال ایک طرف رکھی، سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ خیر ہے، آج تم خود میرے کمرے میں؟ جنت نے نگاہیں جھکاتے ہوئے دبی دبی سی آواز میں کہا، داجی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہاں بیٹا بولو۔ وہ گہرا سانس لے کر تھوڑا اور قریب ہوئی، پھر بولی، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو دیا تھا، آج اس کا جواب آ گیا ہے، مجھے نوکری مل گئی ہے، کل جوائننگ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی اجازت سے میں کل سے کام پر چلی جاؤں۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ رحیم صاحب کی آنکھوں میں حیرت کی ایک چمک سی ابھری۔ انہوں نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، جنت تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پیسہ، دولت، عزت، ہر چیز۔ تم کیوں باہر جا کر محنت کرنا چاہتی ہو؟ وہ تھوڑا سا جھکی، آہستہ سے بولی، داجی میں جانتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں نے زندگی میں ہمیشہ کچھ بننے کا خواب دیکھا تھا۔ برسوں پڑھائی کی، دن رات ایک کیے، محنت کی۔ آج جب میرے خواب کی تعبیر میرے سامنے کھڑی ہے تو میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی۔ رحیم صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ وہ فوراً بولی، مجھے علم ہے کہ آپ کو یہ سب پسند نہیں کہ آپ کی بیٹی گھر سے باہر جائے، لیکن داجی میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں اسی وقار سے باہر قدم رکھوں گی جس وقار سے میں نے آپ کے آنگن میں سانس لینا سیکھا تھا۔ رحیم صاحب خاموش ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں پھر وہی سناٹا چھا گیا۔ حقے کا دھواں آسمان کی طرف اڑتا رہا اور جنت کی پلکوں پر التجا کا سایہ جھلملاتا رہا۔ پھر انہوں نے آہستگی سے سر جھکایا، بیٹا مجھے اب بھی تمہارا جانا بہت بھاری لگ رہا ہے، لیکن تم نے جو باتیں کہیں ان میں سچائی ہے۔ اگر تم اپنا وعدہ نبھاؤ گی تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ جنت کی آنکھیں بھر آئیں، وہ آگے بڑھی، جھک کر ان کے ہاتھ چومے اور دھیرے سے بولی، شکریہ داجی، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ کمرے میں ایک سکون بھری خاموشی چھا گئی، جیسے کائنات نے اس لمحے کو قبول کر لیا ہو۔ ایک بیٹی نے خوابوں کے سنگ پرواز کی اجازت پا لی تھی۔ اگلے دن صبح کی مدھم روشنی آہستہ آہستہ آسمان پر پھیل رہی تھی۔ حویلی کے کوریڈور میں ہلکی سے خنکی اور سکوت کا عالم تھا۔ جنت مکمل تیاری کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ، بالوں میں ہلکی سی چٹیا، کندھے پر بیگ اور چہرے پر اطمینان کی روشنی۔ اس کے قدم مضبوط تھے، نگاہیں صاف اور ارادے پختہ۔ جیسے ہی وہ کوریڈور کی نکڑ تک پہنچی، اچانک سامنے سے نورا تیزی سے آتی دکھائی دی۔ وہ اس کی چچا زاد تھی، نخرہ، غرور اور طنز سے بھری ہوئی۔ وہ سامنے آ کر اچانک رک گئی اور مصنوعی حیرت سے بولی، ارے واہ، صبح صبح تیاری مکمل؟ کیا بات ہے جنت باجی، لگتا ہے داجی نے پیسے دینا بند کر دیے، جو اب نوکری کرنی پڑ رہی ہے۔ جنت نے اسے ایک سرسری نظر دیکھا، پھر پل بھر کے لیے رک کر اپنی رفتار تیز کر دی، جیسے وہ اس کی بات کو سنی انسنی کر رہی ہو۔ مگر نورا کا چہرہ مزید زہریلا ہو گیا۔ اوہو، معاف کرنا، تم تو اب بہت مصروف ہو گئی ہو نا، خود مختار بننے نکلی ہو، جیسے تمہاری ماں تھی نا، اس نے بھی یہی آزادیاں مانگی تھی، پھر کیسا انجام ہوا سب کو پتا ہے، تمہیں بھی ویسے ہی رسوا ہونا ہے۔ جنت کے قدم رک گئے، اس کی پشت سیدھی ہو گئی اور ہاتھ کی گرفت بیگ کے تسمے پر سخت ہو گئی۔
वो आहिस्तगी से पलटी। निगाह में अब सुकून की जगह एक हद दर्जा ज़ब्त था। वो नूरा की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हें अपनी ज़बान काबू में रखनी चाहिए नूरा। तुम्हारी औकात बस इतनी है कि दूसरों की ज़िंदगियों पर कीचड़ उछालो, क्योंकि खुद की ज़िंदगी में ना कोई मकसद है और ना हौसला। नूरा ठुटक गई मगर तन से बाज ना आई। अच्छा, और तुम बड़ी बाहिम्मत हो गई हो ना, नौकरियां करने निकली हो, दादी की इज्जत को सरेआम तमाशा बनाओगी। जन्नत ने तंजियां हंसी हंसी। इज्जत वो खोते हैं जो अपने दिलो दिमाग और ज़मीर को ताले लगा कर रखते हैं। मैंने अपनी तालीम, अपनी मेहनत, अपनी सलाहियतों के बल पर यह मौका हासिल किया है। और हाँ, कम से कम मैं तुम्हारी तरह बिस्तर पर लेटकर पानी के लिए भी मुलाजमा को आवाज़ नहीं देती। नूरा का चेहरा सुर्ख हो गया। जन्नत एक कदम आगे बढ़ी। तुम जैसे लोग सिर्फ दूसरों की कामयाबी से जलते हैं क्योंकि खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी की इतनी फ़िक्र है तो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करके दिखाओ, फिर बात करना। ये कहकर वो अपने मजबूत कदमों से नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगी। पीछे नूरा खड़ी रह गई, चेहरे पर जलन, हार और हैरत के मिले जुले तासुरात। उसका बस चलता तो अभी के अभी जन्नत का मुंह नोच लेती, मगर जानकर वो चुप रही थी। किचन में चूल्हे की आंच धीमी थी, मगर नुसरत बेगम की हरकत तेज थी। वो रोटी सेंकने के साथ साथ पराठे के लिए आटा भी गूंद रही थी। साथ में चाय की केतली भी चूल्हे पर रखी थी। उनकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, मगर चेहरे पर एक इत्मीनान था। बेटी का पहला दिन था, उसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जन्नत दबे पांव किचन में दाखिल हुई और खामोशी से उनके पीछे आ खड़ी हुई और आहिस्तगी से हक करके माँ को चौंका दिया। नुसरत बेगम ने चौंक कर पीछे देखा। हाय मेरी बच्ची, तूने तो डरा ही दिया। कैसी लग रही हो, ज़रा घूम के दिखाओ। जन्नत मुस्कुरा कर घूम गई। बिल्कुल माशाल्लाह, लगता ही नहीं कि मेरी वही छोटी सी जन्नत है। अल्लाह नज़रे बद से बचाए। वो आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमने लगी। अम्मा अब मैं चलती हूँ, पहले ही देर हो गई है। नाश्ता मैं ऑफिस पहुँच कर लूँगी, वहाँ कैंटीन में कुछ ले लूँगी। नुसरत बेगम का चेहरा फौरन संजीदा हो गया। क्या? हरगिज़ नहीं, पहली बार नौकरी पर जा रही हो और वो भी खाली पेट। मेरी बच्ची भूखी नहीं जाएगी। अम्मा प्लीज़, वक्त बहुत कम है, अगर देर हो गई तो गलत तासुर पड़ेगा। पहली ही बार देर हो जाए तो लोग बातें बनाते हैं। जन्नत ने इल्तिजा की। नुसरत बेगम ने चम्मच रखकर कमर पर हाथ रखा। तुम्हें नौकरी से पहले ये याद नहीं आया, वक्त पर उठना था ना? अब जो होगा देखा जाएगा, मगर तुम नाश्ता ज़रूर करोगी। जन्नत ने झुंझलाकर कहा। अम्मा मुझे वाकई देर हो रही है, चाय भी ठंडी हो चुकी है, पराठे भी अभी बने हैं, मैं कुछ ले लूँगी, वादा। नुसरत बेगम ने उसकी बात अनसुनी करते प्लेट में जल्दी से 2 फुलके रखे, उन पर अंडा रखा और चाय का कप निकाला। चुपचाप बैठो और 2 नवाले खाओ, मेरी जान को सुकून आ जाएगा। जन्नत बेबसी से सोफे पर बैठ गई और हंसते हुए बोली, अम्मा आप जैसी माँ दुनिया की सबसे ज़िद्दी और सबसे प्यारी होती है। नुसरत बेगम ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। बस खुश रहो मेरी जान, दुआएं मेरी तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, जब फ्री हो तो फ़ोन कर देना। अल्लाह तुम्हें हर जगह कामयाब करे। तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं है, एक तुम ही तो हो जिसका ख्याल मुझे हर वक्त सताता रहता है। उसने मुस्कुराकर अम्मा को देखा और जल्दी जल्दी चंद नवाले लिए, चाय का एक घूंट पिया और बैग उठा लिया। चलती हूँ अम्मा, दुआ कीजिएगा कि पहला दिन अच्छा गुजरे। नुसरत बेगम दरवाजे तक आई। मेरी दुआ हर पल तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने ना दे, सिवाय अपने रब के। जन्नत ने पीछे मुड़कर देखा। माँ की आंखों में मोहब्बत थी और दिल में फ़ख्र। वो मुस्कुराकर दरवाजे से निकल गई। नया सफ़र, नई मंजिल, लेकिन पीछे छोड़े गए अल्फाज और दुआओं की रोशनी उसके कदमों को रोशन कर रही थी। दफ्तर की इमारत शानदार और बुलंदोबाला थी। सुबह की हल्की रोशनी में कांच की दीवारें, आसमान का अक्स अपने अंदर समोए खड़ी थी। जन्नत जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हुई, उसके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ने लगे। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी और हाथों की हथेलियों में नमी महसूस हो रही थी। आज उसकी ज़िंदगी का पहला दिन था, पहला कदम,
اس دنیا میں جس کے بارے میں وہ صرف سوچا کرتی تھی۔ ریسیپشن کے قریب پہنچی تو نگاہ سامنے موجود شخص پر ٹھہر گئی۔ سلیقے سے پہنا ہوا سوٹ، کندھوں پر رکھے اعتماد کا عکس اور چہرے پر نرمی لیے وہ شاید سر اویس ہی تھے۔ السلام علیکم، جنت نے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ ہی جنت ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ چلیے میں آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ تک لے چلتا ہوں۔ وہ آگے بڑھے اور جنت ان کے ساتھ چلنے لگی۔ لفٹ میں خاموشی چھائی رہی اور جیسے ہی چوتھے فلور پر پہنچے وہ گویا ہوئے۔ دیکھیں جنت، آپ کو یہ جاب ایک خاص رعایت کے تحت ملی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سر ابراہیم بالکل بھی رضامند نہیں تھے کہ آپ کو رکھیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ جنت کا دل دھڑکنے لگا مگر وہ خاموشی سے ان کی بات سننے لگی۔ آپ کو یہاں صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ سر مہتاب صاحب جو ہمارے CEO کے والد ہیں، انہوں نے خود یہ درخواست کی تھی۔ ان کا احترام کرتے ہوئے سر ابراہیم نے ہاں کی، لیکن آپ کو یہ بات ثابت کرنا ہوگی کہ آپ اس قابل ہیں۔ انہوں نے سنجیدہ انداز میں سمجھایا۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گی، جنت نے فوری جواب دیا۔ یہی جذبہ ہونا چاہیے، یہاں محنت اور لگن ہی آپ کی جگہ پکی کرے گی۔ اگر ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو معذرت کے ساتھ آپ کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے۔ جی سر، میں سمجھتی ہوں، اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے مختلف دفاتر کے دروازے، شیشے کی کیبنز اور مصروف عمل ملازمین دیکھ کر جنت کا دل مزید دھک دھک کرنے لگا۔ ہر شخص مصروف تھا، ہر جگہ ایک سنجیدہ فضا چھائی ہوئی تھی۔ سر اویس ایک کیبن کے سامنے رکے، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ آپ کا ورک سپیس ہے، یہ چیئر اور ٹیبل آپ کی ہے اور یہ سسٹم بھی آپ کو الاٹ کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کو کچھ ابتدائی فائلز بھیجی جائیں گی، انہیں دھیان سے ریڈ کیجیے گا۔ جنت نے خاموشی سے سب سنا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ ابتدائی طور پر میں ہی آپ کو گائیڈ کروں گا، کوئی سوال ہو، کچھ سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک پوچھ لیجیے گا، مگر یاد رکھیے یہ فیلڈ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کچھ ثابت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جی سر، میں سیکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا ہے تو پھر جنت، ویلکم ٹو دی ٹیم۔ وہ مسکرائے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جنت نے لمبی سانس لی، کرسی پر بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمپیوٹر کی اسکرین آن تھی اور چند فائلز کی نوٹیفیکیشن آ چکی تھی۔ نئے سفر کا پہلا قدم، لیکن دل میں ایک عزم تھا، وہ خود کو ثابت ضرور کرے گی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی سے ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور داجی کے حکے کی گڑگڑاہٹ نے ماحول میں ایک خاص سکون گھول رکھا تھا۔ رحیم صاحب آرام سے صوفے پر بیٹھے حکا پی رہے تھے۔ ان کی سفید داڑھی میں سنجیدگی اور عمر کا وقار جھلک رہا تھا۔ آنکھیں آدھی بند تھی، جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور نورا تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ قدموں کی چاپ اور تیز سانسوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ داجی نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ داجی، نورا کی آواز اونچی اور تلخ تھی، آپ نے ایسے کیسے اسے اجازت دے دی؟ رحیم صاحب نے بھویں اچکائیں جسے سوال کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کس کی بات کر رہی ہو نورا؟ اسی جنت کی، وہ نفرت سے بولی، جسے آپ نے نوکری کے لیے اجازت دے دی۔ آپ تو مجھے کسی سہیلی کے گھر بھی نہیں جانے دیتے، بابا کو شکایت لگا دیتے ہیں، اور اسے آپ نے بغیر کچھ کہے اجازت دے دی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رحیم صاحب نے گہرا کش لیا حکے سے، پھر دھیرے سے بولے، بیٹا وہ لڑکی غلط راستے پر نہیں جا رہی، وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گی۔ نورا نے غصے سے پیر پٹخا، یعنی آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے؟ ہم بھی آپ کی پوتی ہیں، لیکن آپ نے ہمیں کبھی وہ پیار اور وہ توجہ نہیں دی جو ہمیشہ آپ جنت کو دیتے ہیں۔ رحیم صاحب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ انہوں نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر نظریں نورا کے چہرے پر جما دی۔ نورا، اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ بچپن سے میرے زیر سایہ ہے۔ تمہارے پاس باپ بھی ہے اور ماں بھی، بھائی بھی
तुम्हारे पास मुकम्मल खानदान है, तुम्हारे हर मसले का हल तुम्हारे अपने लोगों के पास है, लेकिन उस मासूम के पास, उसके पास सिर्फ मैं हूं। नूरा की आंखों में नमी चमकने लगी, मगर गुस्सा अभी भी गायब था। तो आपका मतलब है कि हम कुछ नहीं, बस वही सब कुछ है आपके लिए? ऐसा कुछ नहीं नूरा, तुम भी अजीज हो, लेकिन उसे ज़रूरत है मेरे साथ की, मेरे एतमाद की। वो लड़की कमज़ोर नहीं लेकिन अकेली है। अगर हम उसके फैसलों पर उंगली उठाएंगे तो वो किस पर एतमाद करेगी? बेहतर होगा तुम उससे फासले पर रहा करो और उसके मामलात में मदाखलत ना किया करो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। नूरा के चेहरे पर रंग बदलने लगे, होठ भींचे, मुट्ठियां बंद हुई और आंखों में शिद्दत आ गई। ठीक है दादी, जैसा आप चाहें। वो तेजी से पलटी, जोर से पाँव पटकती दरवाजे से बाहर निकल गई। रहीम साहब ने एक तवील सांस ली, आंखें बंद की और दोबारा हुक्के की नाली लबों से लगा ली। कमरे में फिर से वही गड़गड़ाहट गूंजने लगी, जैसे कुछ पलों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया हो, सिवाय उस दर्द के जो अब उनकी बूढ़ी आंखों के कोने में छुपकर ठहर गया था। कैंटीन की फिजा में हंसी मजाक, चमचों की खनक और खाने की खुशबू घोली हुई थी। जन्नत खामोशी से एक मेज के कोने में बैठी थी। सामने रखा हुआ टिफिन उसने हिचकिचाहट से खोला और आहिस्ता आहिस्ता नवाले लेने लगी। नजरें बार बार घड़ी पर जाती, जैसे वक्त को समझने की कोशिश कर रही हो। ये उसका पहला दिन था, माहौल नया, लोग अजनबी और दिल में एक अनजाना खौफ। इसी दौरान अचानक एक नौजवान सी शोख मिजाज कुलीग तेजी से उसके करीब आई, हाथ में फाइल्स और चेहरे पर परेशानी। ओहो जन्नत, आप यहाँ बैठी हैं? वो हाँफती हुई बोली। आपको सर इब्राहिम ने बुलाया है फौरन। और ये लंच आप अब कर रही हैं? जन्नत ने चौंक कर नवाला रोका, नजरें उस पर जम गई। मुझे ऑफ टाइम नहीं मालूम था, पहली बार है ना, इसीलिए। ओह अच्छा, खैर आप जल्दी करें, सर बहुत गुस्से में हैं। उसने तेजी से फाइलों को संभाला और जन्नत का हाथ थपथपाया। चलें अभी। जन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, नवाला हलक में फंस गया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पानी का घूंट लिया और घबराहट से खड़ी हो गई। तेजी से कदम बढ़ाते वो कुलीग के साथ इब्राहिम के केबिन की तरफ रवाना हो गई। हर कदम पर दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। चौथे फ्लोर की कारपेटेड राहदारी में एक संजीदा खामोशी थी, जो केबिन के बाहर पहुंचकर और भी गहरी महसूस हुई। जन्नत ने हौले से दरवाजे पर दस्तक दी। लम्हे भर बाद अंदर से भारी और गुस्सैली आवाज़ आई, आ जाओ। जन्नत का दिल दहल गया, सांस रोकी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने मेज़ पर सर मेहताब बैठे थे, एक बावकार अधीर उम्र शख्स, जिनके चेहरे पर दानिशमंदी और वकार झलक रहा था। उनके साथ खड़ा था इब्राहिम, लंबा कद, हल्की दाढ़ी, तीखे नकोश, चमकती आंखें, बला का हसीन और रोबदार इंसान। जन्नत ने फौरी अदब से दोनों को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। इब्राहिम ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंकारा भरा। वाह, बहुत खूब मिस जन्नत, आपको यहाँ अपॉइंट इसीलिए किया गया है कि आप दफ्तर आकर मज़े से लंच करें, है ना? जन्नत ने नज़रें झुका लीं, चेहरा सुर्ख हो गया, लब कांपे। सर मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे ऑफ टाइम का अंदाज़ा नहीं था, पहली बार है ना, इसीलिए गलती हो गई। सर मेहताब ने थोड़ा झुककर इब्राहिम की तरफ देखा, जैसे उसे नरमी का इशारा दे रहे हों। इब्राहिम ने गहरा सांस लिया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, शर्म, लिहाज, मुरव्वत। वो तंजिया अंदाज में बोला, सब मर चुके हैं आप में। पहले ही दिन आप गलती करती हैं और ऊपर से आपको इल्म ही नहीं कि आपने क्या किया है। जन्नत के लब कांपे, मगर वो बोली, सर वाकई मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या किया है, मैं तो बस लंच के लिए कैंटीन गई थी, बाकी सब कुलीग के साथ। इब्राहिम ने तल्ख हंसी हंसी उंगली घड़ी की तरफ उठाई। 3 बज रहे हैं और आपकी लंच ब्रेक अभी तक ख़त्म नहीं हुई। लंच 2 बजे ख़त्म हो जाता है, सब जानते हैं, सिवाय आपके शायद। वो कुछ कहने को लब खोल ही रही थी कि सर मेहताब, जो अब तक खामोश बैठे सब कुछ देख रहे थे, मदाखलत कर गए। इब्राहिम रहने दो,
बच्ची है, पहला दिन है इसका, ऐसा कौन सा कत्ल कर दिया इसने? एक फाइल खराब हुई है तो दोबारा बन जाएगी, इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर जन्नत की हिम्मत बंधी। यकदम वो संभल कर सीधी खड़ी हो गई। आंखों में हल्का सा एतमाद उभर आया और वो नरमी मगर मजबूती से बोली, सर मुझे वाकई नहीं पता था कि लंच ब्रेक कब ख़त्म होता है। किसी ने मुझे वाज़ेह तौर पर नहीं बताया, ना ही मेरे कुलीग्स ने। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे सुधारूं। बस आप मुझे बता दें मेरी गलती क्या है। उसने एक सख्त निगाह उसके वजूद पर डाली थी और साथ में रखी हुई फाइल उठाकर उसने बगैर किसी लिहाज के जन्नत के सामने मेज़ पर पटक दी। जन्नत चौंक कर पीछे हुई। उसका दिल धड़कने लगा मगर चेहरा बेतासुर रखने की कोशिश में उसने खुद को संभाला। आपको सर अवैस ने ये फाइल्स दी थी रीड करने के लिए? इब्राहिम की आवाज़ सर्द, सख्त और जहर आलूद थी। लेकिन आपका ध्यान ना जाने कहाँ था। आप गईं और इस पूरी फाइल पर कॉफ़ी गिर गई। जन्नत ने हैरानी और शर्मिंदगी से फाइल की तरफ देखा। कागज़ों के किनारे मुड़े हुए थे और कॉफ़ी के धब्बे कई जगहों पर फैल गए थे। ये फाइल हमारे आने वाले न्यू कमर्स के लिए होती है ताकि हम उन्हें आसानी से सिस्टम समझा सकें, तरबियत दे सकें। वो अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और मायूसी दोनों थे। और आप जैसे अनएक्सपीरियंस लोग ऐसे ही बचकाना हद करते करते हैं। पता नहीं मेरे बाबा ने क्या सोचकर आपको हायर कर लिया। इब्राहिम का लहजा तेज था, अल्फाज दिल चीर देने वाले। लेकिन जन्नत ने अपने अंदर उठते आंसुओं को ज़बरदस्ती पी लिया। उसने एक नज़र बर्बाद शुदा फाइल पर डाली, फिर सर झुकाकर मध्यम मगर वाज़ेह आवाज़ में बोली, सर मैं दिल से माजरत चाहती हूँ, ये वाकई मेरी कोताही है, लेकिन मैं ये फाइल दोबारा दुरुस्त कर सकती हूँ। उसकी नज़रें नीची थी, आवाज़ में नरमी थी, लेकिन अगले जुमले में उसकी खुददारी झलकी। और जहाँ तक बचपने की बात थी तो मैं बेशक अनएक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन बचकाना हरकतें नहीं करती। माजरत के साथ, लेकिन मैं आपको भी इजाज़त नहीं दूंगी कि आप मेरे बारे में इस तरह बात करें। इब्राहिम के चेहरे पर सख्ती कुछ लम्हों को ठुठक गई, जैसे वो तवक्को नहीं कर रहा था कि वो ऐसी जुर्रत करेगी। जन्नत ने गहरी सांस ली। आवाज़ धीमी मगर पूरे वकार के साथ कहा, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं जा सकती हूँ? इब्राहिम के लबों पर तलखी उभरी। उसने बेजारी से रुख फेरा और कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखा। जी प्लीज़, और दोबारा इस तरफ आइएगा मत। जन्नत ने बिना कोई और लफ्ज़ कहे मेज़ से फाइल उठाई, दोनों हाथों में संभाली, नजरें नीची किए वहाँ से पलट गई। कमरे से बाहर निकलते उसके कदम धीरे थे, लेकिन जहन में एक वाज़ेह इरादा गूंज रहा था। वो यहाँ सिर्फ नौकरी करने नहीं आई बल्कि खुद को साबित करने आई है, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन उसका दिल उदास हो गया था। जिस तरह से उसने सर मेहताब के सामने उसकी इंसल्ट की थी, उसे वाकई अफसोस हो रहा था। इब्राहिम के बारे में कई कुलीग्स बात कर चुके थे और कई लड़कियों ने उसे बताया भी था कि वो गुस्से का खासा तेज़ है, मगर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो पहले ही दिन उसको इतनी खरी खोटी सुना देगा। आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे जिसे वो बेदर्दी से साफ किए जा रही थी। दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर इरादे मजबूत किए वो खामोशी से अपने काम में लग गई। शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता दफ्तर की खिड़कियों से झांकने लगे। रोशनी जर्दी माइल पड़ने लगी। दफ्तर के अमले के कदम हल्के होते जा रहे थे। कुछ लोग अपना सामान समेट रहे थे, कुछ दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। जन्नत ने गहरी सांस ली और अपनी मेज़ से तैयार करदा फाइल उठाई, जिसे उसने पूरा दिन लगाकर निहायत ध्यान, मेहनत और दिलजमी से मुकम्मल किया था। ये महज एक फ़ाइल नहीं थी, बल्कि एक चुपचाप जवाब था उन सब तानों और इल्ज़ामात का जो दिन के आगाज़ से ही उसके कानों में गूंजते रहे थे। दरवाजे के सामने आकर उसने लरसते हाथों से हल्की सी दस्तक दी। अंदर से फ़ौरन इजाज़त की आवाज़ आई, आ जाओ, जो एक अजीब सा दबाव लिए हुए थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर एतमाद की हल्की सी झलक लिए वो दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में मामूल की संजीदगी और खामोशी कायम थी। इब्राहिम अपनी चेयर पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। उसकी पेशानी पर तनाव के आसार थे।
जन्नत खामोशी से उसके सामने आकर रुकी, नरमी से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। इब्राहिम ने नज़र उठाई, एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर हल्का सा सर हिलाया। जन्नत ने खामोशी से वो फाइल उसके सामने रखी। सर, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से आपका कीमती वक्त ज़ाया हुआ, मगर मैंने पूरी कोशिश से ये फ़ाइल दोबारा तैयार की है। ये एक्यूरेट है, आप देख सकते हैं। उसकी आवाज़ में थकन भी थी और एक अजीब सा सुकून भी। इब्राहिम ने बगौर फ़ाइल के सफ़ात पलटे, कुछ सतरें पढ़ीं, फिर उसने नज़रें फ़ाइल से उठाकर जन्नत को देखा। इस बार लहजे में सख्ती नहीं थी, बस एक रस्मी सा तासुर। वेरी गुड, उसने आहिस्तगी से कहा, और आइंदा ख्याल रखना कि दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो। जन्नत ने सर हिलाया, शुक्रिया अदा करने ही वाली थी कि वो दोबारा गोया हुआ। इस बार आवाज़ में कदरे तंज लौट आया। और लास्ट बात, जब मैं कुछ बोलूं या डांटूं तो मेरे सामने कोई लफ्ज़ नहीं बोलेंगी, क्योंकि मैं आपका बॉस हूं, आप मेरी नहीं, समझी? उसका लहजा सर्द और वाज़ेहा था, जैसे एक हद खींच दी गई हो। जन्नत ने कुछ लम्हे नज़रें झुकाए रखी, उसके होंठ हिले मगर कोई लफ्ज़ अदा ना हुए। फिर उसने पुरसकून अंदाज में कहा, सर, क्या मैं जा सकती हूँ? इब्राहिम ने हल्का सा सर हिलाया, नज़रें दोबारा फाइल की तरफ मोड़ते हुए बोला, जाएं। जन्नत ने बगैर कोई और लफ्ज़ कहे पलटकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। शाम की खामोशी में उसके कदमों की चाप मध्यम मध्यम कमरे में गूंजती रही। दरवाजे से बाहर निकलते उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट में खुददारी थी, तसल्ली थी, और शायद एक गैर महसूस ऐलान कि ये लड़की हार मानने वाली नहीं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें सड़क पर गिरी जा रही थी, सर्द हवा चेहरे से टकरा रही थी, और शाम की धुंधलके में रोशनी मध्यम पड़ गई थी। जन्नत का दिल जैसे बेचैनी की लपेट में था। वो दफ्तर से निकलकर थोड़ा फासला तय कर चुकी थी, मगर बारिश तेज़ होती जा रही थी और सड़क पर गाड़ियां ना होने के बराबर थी। उसने फ़ोन निकालकर कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, कैब कैंसल्ड। बेबसी से फ़ोन बंद करके वो एक खाली से कोने में जाकर खड़ी हो गई। दिल में गुजरने वाले लम्हे बेहद बोझल थे। अचानक जैसे कोई उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ा दे। उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। धीरे से पलटकर पीछे देखा तो एक साया सा दिखाई दिया। नहीं, 4 साए थे। सड़क के कोने पर 4 लड़के खड़े थे, नजरें इसी पर गाड़े हुए। उनकी निगाहें इतनी गलीज थी कि जन्नत का दिल कपकपा उठा। वो जल्दी से नजरें चुराते वहां से दूसरी तरफ को निकल गई। कदम तेज कर दिए, लेकिन कुछ ही देर में वो लड़के दोबारा उसके सामने आ गए। उनकी हंसी, उनकी नजरें, उनका अंदाज, सब कुछ उसकी रूह को जख्म दे रहा था। जन्नत का दिल घबरा गया। वो फौरन वापस कंपनी की तरफ मुड़ने लगी कि अचानक एक स्याह रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और सामने इब्राहिम को देखकर वो यकदम ठुठक गई। वो संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ मिस जन्नत, आप अभी तक गई नहीं? उसकी आवाज़ में हैरत और खफीफ सी तशवीश थी। जन्नत ने बमुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, सर, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, कोई कैब आने को तैयार नहीं, बारिश की वजह से सब कैब कैंसिल हो रही हैं। इब्राहिम ने एक नज़र बारिश, फिर उसके भीगते चेहरे और फिर सड़क के किनारे खड़े उन लड़कों पर डाली जो अब भी घूरने से बाज नहीं आ रहे थे। आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जन्नत ने फौरन पीछे हटते कहा, नहीं सर, आप जाएं, मैं खुद देख लूँगी। इब्राहिम ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, देखिए, अगर आप मज़ीद यहाँ रुकेंगी तो वो लड़के आपके बिल्कुल करीब आकर खड़े हो जाएंगे। आप मज़ीद परेशान होंगी और शायद कोई मसला भी हो जाए। बेहतर यह है कि मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। मैं आपको महफूज तरीके से घर छोड़ देता हूँ। जन्नत ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, फिर पीछे मुड़कर उन 4 लड़कों को देखा जिनकी नज़रों का जहर अब तक उसके वजूद को ज़ख्मी कर रहा था। वो गहरी सांस लेकर पलटी, सर को धीरे से हिलाया और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के अंदर बैठते ही बारिश की आवाज़ खिड़कियों पर तेज़ हो गई, लेकिन अंदर एक खामोश सी राहत थी, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, जैसे किसी तूफ़ान से बचा लिया गया हो।
गाड़ी की नरम गरम खामोशी में सिर्फ वाइपर की हल्की आवाज़ गूंज रही थी जो बारिश के कतरों को शीशे से हटा रहा था। बाहर सड़क पर बारिश थमी नहीं थी और अंदर गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इब्राहिम हाथ स्टीयरिंग पर रखे नजरें सड़क पर जमाए ड्राइव कर रहा था। जन्नत की नजरें खिड़की से बाहर थी, लेकिन दिमाग कहीं और, जैसे दिल अब भी चंद लम्हे पहले वाले खौफ में कैद हो। चंद लम्हों बाद इब्राहिम ने नरमी से खामोशी तोड़ी। मिस जन्नत, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात पूछूं? जन्नत ने चौंक कर नजरें उसकी तरफ की, फिर इस बात में सर हिलाया। आप जॉब क्यों करना चाहती हैं? मेरा मतलब, मैंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया था, लेकिन आपको देखकर अंदाज़ा होता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं। वो चंद लम्हे चुप रही, जैसे अल्फाज सोच रही हो, फिर धीरे से बोली, बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरे और अम्मी के तमाम खर्चे दादी ने बर्दाश्त किए हैं। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है सर, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इब्राहिम ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली जो अब कुछ नरमी से रोशन हो गया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने खुद फैसला किया कि मैं अपनी माँ का और अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, इसीलिए नौकरी कर रही हूँ। उसके लहजे में अज़म और खुददारी की एक मजबूत झलक थी जिसने इब्राहिम को चंद लम्हों के लिए खामोश कर दिया। उसने आहिस्ता से पूछा, तो आपके फादर? जन्नत की सांस रुक सी गई और आवाज़ थोड़ी कपकपाई। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। एक लम्हा खामोशी छा गई। इब्राहिम ने फौरन संजीदगी से कहा, ओह सॉरी। गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो गई, जैसे इब्राहिम भी किसी ख्याल में गुम हो गया हो। जन्नत खिड़की से बाहर देखने लगी। बारिश के कतरों के पीछे छुपी यादें जैसे आंखों के सामने आ गई। चंद लम्हों बाद इब्राहिम ने फिर सवाल किया, और आपकी मंगनी वगैरह हुई है या आप किसी रिलेशन में हैं? जन्नत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ हल्की सी संजीदगी भी थी, जैसे ये सवाल अचानक ना हो, कुछ सोच कर किया गया हो। लेकिन वो फौरन खुद को संभालती हुई बोली, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। इब्राहिम ने उसका जवाब सुना लेकिन मज़ीद कुछ ना कहा। गाड़ी अब तेज़ हवाओं के साथ खामोशी से सड़क पर रवां दवां थी। उसने एक निगाह जन्नत पर डाली जो दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर अल्फाज चुपचाप दिल के अंदर ही रह गए। आपका घर किस तरफ है? इब्राहिम ने नरम लहजे में पूछा। जन्नत ने आहिस्ता से रास्ता बताया और इब्राहिम गाड़ी उस सिमत मोड़ लेता। खामोशी और बारिश अब गाड़ी के अंदर एक अलग सा सुकून ला रही थी। घर के गेट से अंदर दाखिल होते ही बारिश की नमी उसकी चादर से रिस रही थी। उसके जूते कीचड़ से भर चुके थे और चेहरे पर दिन भर की थकन साफ नजर आ रही थी। जन्नत ने जूते दरवाजे पर उतारे और धीमा सा सांस लेकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। लाउंज की जर्द रोशनी ने उसकी आंखों को चुंदिया दिया। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठे दादाजी और चचा आसिम साहब पर पड़ी। दोनों की नज़रें बैक वक्त उसी पर थीं। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, चाचू, वो नरमी से बोली। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने बैक वक्त जवाब दिया, मगर आसिम साहब की नज़रें कुछ ज़्यादा गहरी थीं। वो खामोशी से आगे बढ़ने ही लगी थी कि आसिम साहब की सख्त आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। रुको जन्नत, ये बताओ तुम किसकी गाड़ी में आई हो? एक पल के लिए उसका दिल धक से रह गया, जिसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। उसने नज़रें झुकाईं, फिर खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, चाचू, वो मेरे बॉस थे, इब्राहिम सर। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, कोई कैब नहीं मिल रही थी, रिक्शे वाले भी इनकार कर रहे थे और रोड पर कुछ लोग खड़े थे जिनसे मैं घबरा गई। दादाजी ने एक बारीक नज़र उसके चेहरे पर डाली। उनके चेहरे पर फिक्र और सख्ती का मिला जुला तासुर उभरा। आसिम साहब ने जैसे सवाल को दोहराया, तो तुमने अपने बॉस की गाड़ी में बैठने को मुनासिब समझा? चाचू, मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की, काफ़ी देर रिक्शा और कैब का इंतज़ार किया, लेकिन बारिश के बायस सब ने बुकिंग कैंसिल कर दी थी। सड़क पर तन्हा खड़े रहने से बेहतर यही लगा कि किसी महफूज सवारी में घर आ जाऊं। दादी ने कुर्सी पर थोड़ा आगे होकर नरमी मगर सख्त लहजे में कहा, अगर ऐसा मसला है तो मैं कल से गाड़ी भेज दिया करूँगा। जन्नत ने नज़रें झुकाए रखी।
दादा जी का लहजा मजीद संजीदा हो गया। आइंदा के बाद ना तुम किसी बॉस के साथ आओगी ना किसी कुलीग के साथ, और अगर ऐसा फिर हुआ तो तुम हमारा सख्त रद्द अमल देखने के लिए तैयार रहना। जन्नत का दिल बैठ गया, मगर वो जानती थी कि दादी की फिक्र बेजा नहीं है। उनकी सख्ती उनके तहफ़्फ़ुज़ का दूसरा नाम थी। उसने खामोशी से सर हिलाया, फिर धीरे से बोली, जी दादाजी, आइंदा ख्याल रखूंगी। आसिफ साहब ने कुछ लम्हे तक उसे देखा, फिर सर हिलाकर खामोश हो गए। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। दिल में एक अजीब सी खलिश थी, जैसे कोई बोझ हो, अल्फाज से हल्का नहीं किया जा सकता था, मगर वो जानती थी उसे अपने फैसलों में और ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ हर कदम पर निगाहें उसकी मुहाफिज भी थी और निगरान भी। वक्त की रफ्तार धीमी धीमी गुजरती जा रही थी। 2 हफ्तों बाद धूप छाँव से छन कर आती रोशनी दफ्तर की बड़ी खिड़कियों से अंदर फैल रही थी। एयर कंडीशंस की मध्यम गूंज, कीबोर्ड की टिक टिक और कभी कभार किसी फाइल के पलटने की आवाज़ माहौल में मसरूफियत की गवाही दे रही थी। जन्नत अपनी मेज़ पर झुकी पूरी संजीदगी से एक अहम प्रेजेंटेशन पर काम कर रही थी। उसके हाथ फाइलों के दरमियान रवां थे जब सर अवैस आहिस्तगी से करीब आए और उसके सामने झुककर नरमी से बोले, मिस जन्नत, ये वाली रिपोर्ट आपकी तरतीब में थोड़ी बहुत तब्दीली चाहिए। मैं बता देता हूँ, आप साथ साथ नोट कर लें। जन्नत ने फ़ौरन अपनी नोटबुक ली और हमतन गोश होकर सुनने लगी। सर अवैस की आवाज़ में वही प्रोफेशनल लहजा था जो हर जूनियर को समझाने के लिए दरकार होता है। लेकिन ऐन उसी वक्त दरवाज़ा खुला और अंदर इब्राहिम दाखिल हुआ। कदमों की चाप के साथ वो एक ज़बरदस्त वजाहत और रोब के साथ कमरे में आया। जन्नत और अवैस की तरफ एक तेज़ जमी हुई निगाह डाली और फिर कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चला गया। जन्नत ने बेसाख्ता चौंक कर उसे देखा, मगर फ़ौरन दोबारा अपनी तवज्जो फाइल की तरफ कर ली। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी मेज़ पर रखी फ़ोन की घंटी बजने लगी। जन्नत ने चौंक कर रिसीवर उठाया। जी, मिस जन्नत स्पीकिंग। दूसरी तरफ इब्राहिम की गहरी मध्यम आवाज़ सुनाई दी। अभी मेरे कमरे में आइए। जी सर, वो मुख्तसर सा बोली और रिसीवर रखकर उठ खड़ी हुई। दिल थोड़ा धड़क रहा था, मगर चेहरा संजीदा और बावकार रखा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो इब्राहिम कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए उसे बगौर देख रहा था। कमरे में खामोशी का राज था। वो चंद लम्हे यूं ही खामोशी से बैठा उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर सर्द लहजे में बोला, सर अवैस आपकी टेबल पर इतना क्यों होते हैं? जन्नत ने कुछ लम्हे की हैरानी से उसे देखा, फिर नरमी से बोली, सर वो मुझे काम समझाते हैं, मैं उन्हीं के अंडर काम कर रही हूँ, इसलिए। अभी उसका जुमला मुकम्मल ना हुआ था कि इब्राहिम ने रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल किया। रिसेप्शन। सर अवैस के अंडर अब मिस जन्नत काम नहीं करेंगी, ये नोट करवा दें। आइंदा से वो मेरे अंडर काम करेंगी। कॉल काट कर उसने नज़रें जन्नत पर जमाई। आज आप मेरे साथ साइट विजिट पर चलेंगी, कोई एतराज़ है आपको? जन्नत ने कुछ लम्हे की खामोशी के बाद सर हिलाया। नहीं सर, ठीक है, जा सकती हूँ। वो खामोशी से उठी, नज़रें झुकाईं, दरवाजे के जाने बढ़ी और कमरे से बाहर निकल गई। दिल की धड़कन अब भी कदरे तेज़ थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून फैल चुका था, जैसे किसी नादीदा तब्दीली का आगाज़ हो चुका हो। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। आज वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर तक गई थी, लेकिन जानती नहीं थी कि कैसी क़यामत बर्पा होने वाली है। घने बादलों की ओट से डूबता सूरज शाम का सुनहरा अक्स ज़मीन पर बिखेर रहा था। जन्नत हल्के कदमों से थकी हुई आंखों के साथ घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। 1 हफ्ते की मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और सफ़र ने उसके चेहरे पर थकन की परछाइयाँ फैला दी थीं। बैग को कंधे से सिरकाते वो अभी दहलीज अबूर करने ही वाली थी, जब अचानक अंदर से आती गरजदार आवाज़ ने उसके कदम वहीं साकित कर दिए। वहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सरों पर खाक डालने के बाद इस दहलीज पर कदम रखने की? ये दादी की गरजदार आवाज़ थी जो दिल के किसी नेहा खाने में जलजला सा बर्पा कर गई। जन्नत एक लम्हे को लरस गई, उसके कदम जम गए। आंखों में हैरत और दिल में अनकही बेचैनी ने सर उठाया।
उसने नासमझी से लाउंज की तरफ देखा जहां दादा साईं कुर्सी पर बैठे शदीद गुस्से में तप रहे थे। उनके चेहरे पर तहकीर, आंखों में नफरत और आवाज में वही रिवायती गैरत की गरज थी। दादा साईं, मेरी बात तो सुने। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी मगर बात अधूरी रह गई। मत बोलो, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ खानदान की इज्जत को रौंदने के लिए पैदा होती हैं। नूरा ने जो दिखाया वो आंखें खोल देने को काफी था। दादा साईं की आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी थी। उनके करीब ही नूरा खड़ी थी, आंखों में मसनूई आंसू और होंठों पर तमानियत का साया। नहीं दादा साईं, वो सब झूठ है, मेरी बात। जन्नत ने फिर से कुछ कहना चाहा। बकवास बंद करो। दादा साईं उठे और गुस्से में आकर एक जोरदार धक्का दिया। जन्नत की सांस हलक में अटक गई। जमीन कदमों तले से निकलती महसूस हुई, मगर जैसे ही उसका तवाजुन बिगड़ा, किसी मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। वो घबरा कर पलटी तो सामने इब्राहिम था। लाउंज की फिजा में सनसनाहट सी तारी थी। सबकी नजरें इब्राहिम पर जमी थी, जो जन्नत के सामने ढाल बनकर खड़ा था। जन्नत खामोश, साकित और सहमी हुई नजरों से सबको देख रही थी, जैसे एक ही पल में सब कुछ अजनबी हो गया हो। इब्राहिम ने गहरी सांस लेते रहीम साहब की तरफ देखा, फिर धीमे मगर पुरस्सर लहजे में गोया हुआ। बिना जुर्म बताए आप किसी को घर से नहीं निकाल सकते दादा साईं, जब तक आप इसे ये नहीं बताएंगे कि इसने क्या किया है। वो अपनी सफाई कैसे दे सकती है? रहीम साहब की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़की। वो कुर्सी से थोड़ा सा आगे झुककर बोले, तुम हमारे घरेलू मामले से दूर रहो लड़के। ये लड़की हमारी इज्जत खाक में मिला रही है, सारी दुनिया में अपनी नाजेबा तस्वीर फैला रही है, और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। इब्राहिम ने निहायत तहम्मुल से उनकी बात सुनी, फिर कदम आगे बढ़ाते संजीदगी से बोला, तो मुझे दिखाएं वो तस्वीर, कहाँ हैं? मैं भी देखूं कि क्या सबूत हैं आपके पास। इस जुमले ने गोया लाउंज में एक बम सा फोड़ दिया। सब चुप हो गए। रहीम साहब का चेहरा सुर्ख होने लगा। उनका हाथ कुर्सी की बाजू पर जा पड़ा। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। वो बड़बड़ाए कि अब हमसे ऐसी चीजें मांगी जाएंगी। इब्राहिम की आंखों में सख्ती उभर आई। वो कदरे बुलंद आवाज में मगर मुकम्मल प्रोफेशनल अंदाज में गोया हुआ, आजकल ऐसी तस्वीरें झूठी बनाई जा रही हैं और ये एक संगीन जुर्म है। जो भी ऐसा करता है सीधा जेल जाता है। जहाँ तक मैं मिस जन्नत को जानता हूँ, वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन ऐसी घटिया हरकत हरगिज नहीं जिससे आपकी या खानदान की इज्जत पर आंच आए। रहीम साहब की निगाहें एक लम्हे को उसकी आंखों से उलझी, फिर वो खामोश हो गए। सन्नाटा छा गया। चंद सानिये बाद वो धीमी आवाज में बोले, कौन हो तुम? इब्राहिम ने एतमाद से जवाब दिया, मैं मेहताब साहब का बेटा इब्राहिम, और मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ वो तस्वीर मुझे दिखाएं। उसकी निगाह नूरा पर जा ठहरी। नूरा जो अब तक खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी, चौंक गई। इब्राहिम की नज़रें उसके अंदर झांक रही थी, जैसे सब कुछ जान चुकी हों। वो घबरा कर पलटी, दादी आप इसे वाकई दिखाएंगे वो तस्वीरें? वो तो बहुत शर्म की बात है। मिस, इब्राहिम की आवाज़ में अब हुक्म का रंग था, तस्वीरें दो। अभी नूरा ने थूक निकला, उसके हाथ कपकपा गए। वो जेब से मोबाइल निकालकर झिझकते हुए आगे बढ़ी और इब्राहिम की तरफ बढ़ा दिया। इब्राहिम ने मोबाइल लिया, स्क्रीन पर एक नज़र डाली और चंद लम्हे खामोशी से तस्वीरें देखता रहा, और फिर मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए सोफे पर बैठ गया। लाउंज में लम्हों को कैद करने वाली खामोशी छाई हुई थी। इब्राहिम ने एक गहरी सांस भरी, अपना लैपटॉप बैग से निकाला और मेज़ पर रख कर बैठ गया। सब हैरत से उसके अंदाज को देख रहे थे। उसकी उंगलियों की रवानी से कीबोर्ड पर हरकत जारी थी। जन्नत नम आंखों से चुपचाप उसे देख रही थी। चंद लम्हों बाद उसने स्क्रीन सबकी तरफ मोड़ दी और कहा, ये तस्वीरें झूठी हैं। मैंने इनके पिक्सल्स, शेडोज़ और डेटा एनालिसिस से साबित कर दिया है कि ये एडिटेड है। और ये रहा सॉफ्टवेयर लॉग, जिसमें इस वक्त और तारीख का रिकॉर्ड है जब ये तस्वीर जाली तौर पर बनाई गई। इसमें लम्हा भी सब कुछ बयान कर रहा था। वो कंप्यूटर में माहिर था, उसके लिए ये सब वाज़ेह करना मुश्किल नहीं था।
उसने सबूतों पर निशान लगाया, तस्वीरों के बैकग्राउंड का तजाद, चेहरे के अतराफ, धुंधलापन और कोड के जरिए साबित की गई तदवीन। हर लफ्ज़, हर दलील खामोशी को काट रही थी। रहीम साहब जैसे पत्थर के मुजस्मे बने खड़े थे। उनकी आंखें नूरा पर जम गईं जो रो पड़ी थी। ये मुझे हर बात में कमतर समझती है, हर जगह मुझे नीचा दिखाती है, उसने लरसती आवाज़ में एतराफ़ किया। बस इसलिए मैंने ये सब किया। वो डर के मारे खुद ही एतराफ़े जुर्म कर चुकी थी। उसकी माँ की आंखों में आग भर गई। अगले ही लम्हे ज़ोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। शर्म आनी चाहिए नूरा, अपने खून के साथ इतनी घटिया हरकत। उसे बाजू से पकड़कर लाउंज से घसीटते हुए ले गई और पीछे सन्नाटा छोड़ गई। रहीम साहब ने कदम आगे बढ़ाया, आंखों में नदामत और दिल में शुक्र। बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने ना सिर्फ हमें सच दिखाया बल्कि हमारी बच्ची को बचा लिया। इब्राहिम ने नरमी से उनका हाथ थामा। शुक्रिया ना करे दादा साईं, बस अगर मुमकिन हो तो मुझे आपके घर की एक कीमती शय दे दे। वो चौंक कर उसे देखने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? इब्राहिम ने एक लम्हे को नजरें झुकाई, फिर एतमाद से उनकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ कि ये बात शायद अचानक हो, लेकिन अगर आज ना कही तो शायद सारी जिंदगी ये गिल्ट रहे। मैं आपकी पोती जन्नत से शादी करना चाहता हूँ। मेरे बाबा भी इस ख्वाहिश का इजहार जल्द करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको सबसे पहले बताऊं। रहीम साहब ने जन्नत को देखा जो शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। फिर उनकी नजरें इब्राहिम पर गईं। जिस शख्स ने बगैर कुछ जाने इतनी बहादुरी से हमारी इज्जत का दिफा किया, जो बगैर रिश्ते की उसकी हिफाजत कर सकता है, वो उम्र भर उसे संभाल भी सकता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं बेटा, उन्होंने लम्हे में फैसला ले लिया था। बेशक जो शख्स बिना जाने बिना देखे उनकी पोती की ज़ात पर इतनी आराम से यकीन कर सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। इब्राहिम की नज़रें जन्नत पर ठहरी, जैसे वो उसे ज़िंदगी की सबसे कीमती दौलत के तौर पर पा गया हो। वो आहिस्ता से सर झुकाकर मुस्कुराई, गोया उसने दिल की रजामंदी दे दी हो। 1 साल बाद शाम की नरम धूप में समंदर की लहरों का शोर, हवा का नरम झोंका और साहिल की तन्हाई में सिर्फ वो दोनों मौजूद थे। इब्राहिम का हाथ उसके हाथ में था और वो खामोशी से उसके साथ चल रही थी। फिर वो एक लम्हे को रुका, उसका हाथ थामे उसे अपनी तरफ मोड़ा। जन्नत, तुम्हें पता है, मोहब्बत कभी ज़ोर से नहीं कही जाती, वो तो सिर्फ निभाई जाती है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और सर उसके कंधे पर रख दिया।